بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله الأمين المقيم النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میں کمیٹی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سرزمین نساء کی کمیٹی اور ان کے ممبران کو، جس میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میلاد شریف کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ممبران صدر و سیکرٹری کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے اور اس آمد مصطفیٰ کو سبھی ان کا ہر دنیا کام بن جائے. رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، چھٹا پارہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تیار کرو. وسیلہ کا ذکر ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا وسیلہ ہے. وسیلہ تو کسی کا بات پہ جائیں گے نہیں بلکہ میرے قرآن کا ہے. اگر آج وسیلہ نہ ہوتا تو شاید کوئی بھی ولی نہ بنتا. اگر وسیلہ نہ ہوتا تو شاید بڑے بڑے انبیاء کرام اپنی ماں کی گود سے پیدا بھی نہ ہوتے. یہ وسیلہ رب تعالیٰ چھٹا پارہ کی ارشاد فرما دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ان کے طرف وسیلہ تیار کرو. تو آج ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ آخر رب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، آخر ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ آخر اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا، کون سا راستہ استعمال کیا، کون سا وسیلہ استعمال کیا؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ بذلک فلیفرحوا. یہ آیت محبوب آپ کہہ دیجئے، اگر کوئی خوشی کوئی رحمت اگر آپ کے طرف آئے تو لوگ خوشیاں منائیں. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کوئی فضل ہماری طرف سے کوئی رحمت آئے تو مومن کو چاہیے خوشیاں منانے کے لیے. اب قرآن سے ثابت ہے خوشیاں منانے کا. یہ رب خود ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. بے شک اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، جب ان کے طرف کوئی خوشی کا نشانی آئے، جب کوئی خوشخبری آئے، جب میری رحمت آئے تو وہ خوشیاں منائیں. اور جب قرآن کہتا ہے سورۃ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 58 ہے، قرآن مقدس کا آیات کریمہ ہے، خوشیاں منانے کا حکم ہے. پھر بھی لوگ کہیں گے یہ رحمت کا گھر ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. کیونکہ اللہ نے ہم سے کہا، اللہ کے نبی نے تو ہم سے کہا، تو پھر خوشیاں کیسے؟ تو آؤ میں آپ کو خود قرآن سے ہی حدیث قرآن سوریا کا حوالہ دیتا ہوں. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے لوگوں میں نے تمہارے محبوب کو محمد کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. خوشیاں خوشیاں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ
की आमद की खुशी है। तो हज़रत आयशा फरमाती है मेरे बेटे का हज हुआ तो मैंने कहा अपने हुजूर से सदाकत मुतल्लिब से कहा बाजा मेरे बेटे का हज होता है, ऐसा मालूम होता है कि बच्चे का तवल्लुद का वक्त हो चुका है। सदाकत मुतल्लिब ये अपने साथी को हज़रत हलीमा सादिया शिफा से उनके पास खबर भेजते हैं, कह दो जाओ हज़रत शिफा हलीमा सादिया को बता दो कि मेरे घर में बच्चा तवल्लुद होने वाले हैं। ये ऊँटनी पर सवार होकर के जो ऊँटनी का आलम ये है, जो ऊँटनी बीमार थी, जल्दबाजी में ऊँटनी पर सवार हुई है, वो शिफा हलीमा सादिया और ऊँटनी पर जब आ रही है नबी के घर में, आमिना के घर में, हज़रत सदाकत मुतल्लिब के घर में जब वो आ रही है तो ऊँट का ये मकान है, बार बार बैठ जा रहा, थकान महसूस कर रहा, ताकत नहीं। इसी तरह से आमिना के घर में पहुंचती है। इतने में फजर के वक्त में तकरीबन 3 बजे शाम में आती है, न रात का जो पहर है न सुबह का पहर है, दर्द होता है। अचानक से करवट देती आमिना हलीमा शिफा अंदर जाती है। इतने में खुशखबरी देने वालों ने फरिश्तों को मलाइका का हुजूर उनके दरवाजे पर दो फरिश्ते झंडे को लेकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, झंडे को लेकर खड़े हो गए। सरदार अब्दुल मुतल्लिब वो पहुंचते हैं, मुझे अंदर जाने का हुक्म दो। फरिश्ते कहते अभी नहीं, फरिश्ते कहते अभी नहीं, अभी आप रुक जाए, आप इजाजत होगी लेकिन थोड़ी देर आप और रुक जाए। कसम खुदा की जैसे ही ना तो सुबह का पहर है ना तो रात का पहर है, सहरी का वक्त हो चुका है जिसको सुबह साद के वक्त कहा जाता है। सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो जाते हैं, लेकिन हज़रत हलीमा बाहर निकलने के बाद लोगों को ये अर्ज करती है आमिना, ऐ सरदार अब्दुल मुतल्लिब मैंने बड़ा अजीब मामला देखा, मैं तो हैरान हो गई। मैंने इतने बच्चों को, मैंने सबको देखा, मैं जगह जगह जाती हूँ, हर माओ को उनके दर्द के लिए आसान करवाती हूँ और उनके बच्चों को तवल्लुद कराती हूँ, लेकिन आमिना मैं क्या देख रही हूँ, जब तेरा बच्चा जब पैदा हुआ है, सबका बच्चा जब पैदा होता है उनकी नाक से कोई अतरी फटा होता है, उनके मुखड़े होता है, लेकिन ये आमिना कुर्बान जाओ तेरे बच्चे का, जब तेरा बच्चा पैदा हुआ है उनके साथ रात नहीं है बल्कि नाक भी का नाक कटा हुआ है। सुभान अल्लाह, ऐ आमिना कुर्बान जाओ, जब तेरा बच्चा जब पैदा हुआ है, सबका बच्चा पैदा होता है तो खतरा करने की नौबत आती है, लेकिन आमिना कुर्बान जाओ तेरे बच्चे पर, तेरा बेटा जब पैदा हुआ तो खतरा हुआ पहले पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, ऐ आमिना कुर्बान जाओ तेरे बच्चे पर, कसम खुदा की मैंने ये देखा तेरा बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते के साथ ही जमीन पर जैसे मैं रखी वो फौरन सजदे में चला गया है और सजदे में जाने के बाद वो मुझे अपने इशारा आसमान की तरफ करते हैं और ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम देते हैं कि दुनिया वालों एक वही है जो मुझको पैदा करने वाला है और तुम्हारा देने वाला है, वही पे इशारा करता है। उसके बाद हज़रत आमिना अपने बेटे मोहम्मद को गोद में लेती है, उसके बाद कपड़े लपेटती है, लपेटने के बाद अचानक से तमाम सितारा आसमान को उनके मकान पे आ गया। कसम खुदा की बादल का टुकड़ा उसके मकान में दाखिल हुआ। अचानक से सकारे को बादल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना की गोद से अचानक मोहम्मद नबी गायब हो गए। गायब होने के बाद बादल से आवाज आ रही थी, अरे लोगों सुनो सुनो, अरे लोगों सुनो सुनो, ये मशरिक़ और मग़रिब को शेयर करा दो, ये तमाम अंबिया है, रहमतुल आलमीन है, जाने वाला नबी है और सबसे खातम नबी है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, इसे काबा का शेयर करा दो। फिर आमिना फिर इज्जत घबरा जाती है। कुछ देर के बाद फिर मोहम्मद मुस्तफा उनके गोद में वापस आ जाते हैं। उनके बाद उनके दादा जान सरदार अब्दुल मुतल्लिब अपने पोते को गोद में लिए और सादा कपड़े लपेटा, लपेटने के बाद अब छूते हैं, छूने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला मैंने काबे की गिलाफ पर दुआ किया था, तूने मेरे बेटा दुल्हा को छीना था, मैंने उसको दुआ किया था मेरे मौला मेरे घर में औलाद अता फरमा दे ताकि उनका नस्ल चलता रहे, मैं तेरा शुक्र है। इतने में अब सरदार अब्दुल मुतल्लिब के कानों में फरिश्ते कहते हैं अब देर ना कर, जा पारे काबा को तवाफ करा दे। सरदार अब्दुल मुतल्लिब अपने पोते को लेकर के काबे की तरफ जा रहे हैं, हाजी का हुस्न लगा हुआ है, तमाम लोग खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं, हाजी का हुस्न लगा हुआ है, तमाम लोग काबा की ज़ियारत कर रहे हैं।
तस्लीम को आए, जैसे काबा के करीब पहुंचे हैं, कसम खुदा की काबा छूट गया है, और छूटने के बाद मेरे मोहम्मद का जियारत करने लगे और मोहम्मद को देखने लगे। तमाम हुजूर हाजियों ने देखा, मैं तो तलाक करने के लिए आया हूँ खाने काबा को, लेकिन काबा किसको तलाक कर रहा है, ये काबा किसको गिरा कर रहा है, ये काबा किसको देख रहा है। सब लोगों ने देखा कि काबा मस्जिद की तरफ झुका है, जिसके लिए मुसीब बन गया था। कसम खुदा की, जब नबी को जियारत करने के लिए काबा झुका, तमाम लोग तलाक करने वाले लोग काबा को छोड़ के जिस बच्चे को देख रहा था, जिस बच्चे को तलाक कर रहा था, तमाम हाजिर आकर उस बच्चे को काबे के मस्जिद तलाक कर दिया। जब बच्चे बोली तो काबा झुक गया और उनको जियारत करने लगा। आदत से फरमाया है कि हाजी आओ शहंशाह का दरवाजा देखें, काबा को देख चुके हो, काबे का काबा देखा। अब तमाम लोग काबा देखने के लिए छोड़ कर सरकार अपनी कुरैशी जो उनका है मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह है, लोग उनका जियारत करने लगे, उनका लोग तलाक करने लगे। उसके बाद अब्दुल कलीम अपने पोते को चुनते हैं, काबा की जियारत कराते हैं, काबा झुका हुआ है, एहतराम करते हैं, कि वापस मकान पे जाने जाते हैं। कसम खुदा की बात में बताना चाहिए, यहूदियों की किताब तौरात में ये बात लिखी हुई थी कि यहूदियों ने आगे उन्होंने कहा था, क्या यहूदियों वाला सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि एक आखिरी नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, और जब उसके आने से कल 10 दिन पहले आसमान में एक लाल सितारा चमकेगा। समझ जाना कि खातमुन नबी मोहम्मद मुसलमानों के लिए आने वाले हैं। वो लाल सितारा चमक रहा था। यहूदियों की आलम में बड़े बड़े मौलानाओं को बुलाया, बड़े बड़े अपने हुक्मरान को बुलाया, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम को बुलाया और बिठाकर की मजलिस रखते हैं। ये देखो लाल सितारा चमक रहा है, ये तो आने वाले खातमुन नबी का ये बशारत है, ये आखिरी नबी आने का ये बशारत है। यहूदी ने कहा ऐसा ना हो कि वो पैदा हो जाए, पता करो कि कहाँ है। पूरे मदीना मुनव्वरा में ढूंढा गया, लोगों से कहा कि पता करो क्या ऐसा है जिसका बच्चा पैदा होने वाला है, जिसका बाप नहीं है। कहा बहुत सारे हामिला औरत है, लेकिन सबका शौहर जिंदा है, किसी का नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये खाने काबा की तरफ गया, खाने काबा में मालूम किया, कहा अरे वो बता ऐसा कोई है जिसके घर में बच्चा पैदा होने उसका बाप नहीं है। कहा हाँ एक आमिना है, उनके शौहर कुछ दिन पहले ही रुखसत हो गए हज़रत अब्दुल्लाह, उन्हीं के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। और उस वक्त मेरे आका दुनिया में तशरीफ फरमा हो गए थे। जब भी यहूदी ने खबर सुना कि नबी तशरीफ आ गए हैं और अपने मौलानाओं के पास गया, तो एक मेरी किताब में ये मालूम जाहिर है, कहा नबी आ गए हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ हो गए। यहूदी ने कहा हाय आज यहूदी को बहुत सुंदर मुसलमानों के तरफ चला गया, आज यहूदी बर्बाद हो गया, आज मुसलमान आबाद हो गया। यहूदी इस बात को तस्लीम करते हैं कि खातमुन नबी आने वाले हैं। देने वालों ने पहले ही कई सौ साल पहले 1500 साल पहले बशारत किया था, 1500 साल पहले कि मेरे आका आने वाले हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपने गोद में हज़रत सरदार अब्दुल मुजीब को लिए हैं, हज़रत शौकिया जो हज़रत अबू लहब के लाउदिया है उसकी गुलाम थी, उनको गुलाम थी और गुलाम जैसे खबर देती है कि आपको मालूम नहीं आज आपका भतीजा आया है, आपका भतीजा आया है और उनका नाम उनके दादा ने मोहम्मद रख दिया है। और ऐसी बात है तो अबू जहल जो ईमान नहीं लाए थे लेकिन मोहम्मद को आने की खुशी में शौकिया से फरमाती है शौकिया तूने सबक ऐसे सुनाई जा मुझको आजाद कर दिया, जब मेरे गुलाम थी मैं तुझे आजाद कर दिया। नबी के आने से वो शौकिया जो गुलाम थी जो कपड़े धोआ करती थी उनकी गुलामी करती थी उनको आजादी मिल गई। नबी जब आए जब वही हज़रत हलीमा सादिया मोहम्मद को लेकर के उस ऊँट पे सवार हुआ जो बीमार था, जो चल नहीं सक रहा था, जैसे सवार हुआ कसम खुदा की ऊँट में ताकत आ गया कि तमाम ऊँटों से आगे आगे चल पड़ा। तो वक्त से उस ऊँट के मुंह में ज़बान आ गया कि हलीमा सादिया ये तो मेरे नबी का चरण है कि जैसे नबी ने मेरे पीठ पर बैठा है, मेरी बीमारी बहुत सारी थी लेकिन जब मोहम्मद ने खातमुन नबी ने जब मेरे पीठ पे बैठा तमाम बीमारी दूर हो गया।
वाला है, वो तो अजीम शान है, बड़ा ही इज्जत वाला है, बड़ा ही शराफत वाला है, बड़ी शक्ति अजमत बाबरकत वाला है। अरे हलीमा बताइए बच्चा कहाँ से लाई है? हलीमा साहब ये फरमाती हाँ हमारा बेटा जो मोहम्मद है, इतने में एक और उसी बस्ती में रहती थी, उसका बच्चा बहुत बीमार था। हकीमों ने ना इलाज कर दिया, बड़े बड़े हकीमों ने उसको ताबीरों ने दवा दिया, मगर शिफा ना पाई। वो बच्चा बीमार की शिद्दत की ये आदम था, जब कुछ वक्त सांप की गिनती गिरने वाला था, वो हलीमा साहब के पास अपने बच्चे को लेकर के जाती है। हे हलीमा तुम तो दाई है, तो बहुत तो बच्चे को इलाज जानती है। हे दाई हलीमा मेरे बच्चे को कुछ ऐसा इलाज कर दे ताकि मेरा बच्चा शिफा पा ले। काफी मुद्दतों के बाद मैंने कहा कि दुआ मांगी थी, तो एक बच्चा तवल्लुद हुआ है। ये हलीमा साथिया तू तो दाई है, तू तो बच्चों को ठीक ठाक कर देती है, तू तो तमाम औरतों पर रहनुमाई करवाती है। ए हलीमा साथिया तू मेरे बच्चे को ठीक कर दे। हलीमा साथिया तो मैं क्या करूं? इतने में सरकार मोहम्मद मुस्तफा के तरलों को उठा करके हलीमा साथिया उनके माथे पर बच्चे को रखती है। रखने के बाद दुआ करती है, ऐ मेरे मौला मैं इसके पैदाइश में देखी अजीब हरकत, अगर ये बरकत वाला बच्चा है तो है मेरी मौला तुझ इस बरकत वाले बच्चे की कसम है कि इस बच्चे को शिफा कर दे। कसम रखना था सरकार के कदमों ने उस बच्चे के सर में रखना ही देनी था। कसम खुदा की वो बच्चा पूरा मुस्कुरा होता है, वो बच्चा हंस होता है और वो बच्चा मुझे शिफा का जाता है। ये बरकत है हलीमा साथिया की पत्नी जो दूध कर देती थी, लेकिन जैसे ही दूध देना शुरू की रिवायतों ने कहा थे, लिखवानों ने लिखा कसम खुदा की हलीमा साथिया एक छोटी सी बकरी को आप खुद मुलाजा करना, आप खुद यकीन करें ये बकरी दूध कितना देगी, एक पाव आधा किलो देती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा देने हो सकती है। ये कुर्बान जाओ हलीमा साथिया जब बकरी को दूध दुआ शुरू की, कसम खुदा की हलीमा साथिया के घर में जितने बर्तन थे तमाम बर्तन भर गए, उसके पास भी लगातार दूध भरा हुआ है। हलीमा साथिया ने तक फरमा परेशान हो गई, पूरे मोहल्ले के आदमी ने अर्ज किया, हलीमा साथिया आज क्या मामला है, मुझे बात समझ में नहीं आई। एक बकरी तुम्हारी एक कुत्ते की दूध देती थी, आज पूरा तबाकत भर गया है तुम्हारे बर्तन, मगर दूध फिर भी खत्म नहीं होती है। अपने आप को चुन कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। हलीमा साथिया फरमाती है मुझे नहीं करना है, मेरे तो आंखों से ना उठाने के आगे देखना है इस बच्चे को, अल्लाह को देख इनके सदक़े में दूध क्यों बह रहा है, सुभान अल्लाह इनके सदक़े में ये दूध जारी है। इंशाअल्लाह सफर करेंगे उनके सदक़े में ये दूध जारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बना अल्लाह का रहमत लिल आलमीन, अल्लाह ताला को वमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सारे आपको सब सारे आदम के लिए रहमत बना के भेजा। और जरा सोच करके देखिए सारे आदम के रहमत बना के जो नबी हमारे लिए आए, जो नबी जिसके बारे में कुरान में कहा रहमान अल्लाह ने कहा, ऐ महबूब मैंने आपके सदक़े में दुनिया बनाई है, ऐ महबूब मैंने आपके सदक़े में आपके लिए ये दुनिया बनाई है। अल्लाह सुभान को दुनिया से तैयारी बोल नहीं खाया लगता है। हां सुभान अल्लाह कहीं हम दूसरे पैदा होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु निकाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खुदा की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ही नहीं बल्कि जैसे ही आने के बाद ये मामला हुआ कि जब लोगों ने देखा कि खातिम नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ फरमा हुए, मेरे आका का जवानी के जदीद आलम था, जब मेरे आका चलते थे तो उनके सरों पर बादल का साया चलता था। उनको पूरी जिंदगी में कभी धूप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म में कभी मक्खी नहीं देखी। पूरी जिंदगी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ कि उसको किसी कीड़े ने किसी चलने वाले ने सलाम न किया हो। हर लोग सबको मालूम है कि मेरे आका खातिम नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्हीं के सदक़े में ये जन्नत है। अल्लाह ने इस सदक़े में दुनिया को बनाया, सदक़ जहान को रोशन दान किया। आज हमारे सर दुनिया में सोचे पार के लोगों आप को रोशन दान नहीं होगा सुभान अल्लाह मोहम्मद के सदक़े में, और जिसने स्नेह को सदाई हो जाए वो भी रोशन दान है।
اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا جس مقصد کے لیے یہ محفل کو سجائی گئی رچائی گئی، اے اللہ تیری بارگاہ